So without these three, I couldn't have done this. And special thanks to Tushar. He is our technical guy. He's done a very good job. Another thing I would like to say, and thanks again to Tushar for pointing this out. You should not be hitting people with this combinations. Okay. It very clearly states dark side of the moon. This time we are not going to talk about happiness and ice creams and children and all that. Okay. This will be how damaging this planet can be and how to control it. And the particular combinations where this damage can be really intense. Okay. Thanks to Linda Goodman, a lot of people know a lot about moon, but ये चीज ज़्यादा publicize नहीं किया है. The dark side, and there is a very deadly dark side, and you people will realize by the time we reach to the end of it. हर चीज के लिए हम by default जो है शनि राहु केतु को blame करते हैं, up to an extent it is right. But ये जो चौथा planet है, he can be much more damaging when he is in a bad mood, okay, or he is in a bad place. So we will start with this, and so people with these combinations, they deserve our empathy and sympathy and support, okay. And for the record, out of the 4 people who worked on it, 3 of us have a very damaged moon, okay. So barring Vishal, the lucky one, all 3 of us have a very damaged moon. So please don't hate us, okay. And whenever you see these combinations, try to help these people. Moon will bless you, okay. So let's start. So it's werewolf, then which is dark side of the moon, okay. And one last thing I would like to add, people have a very romantic notion of moon, and especially the sign Cancer, which you all know I love to hate, and particularly Pisces. So this time we will go to their dark sides as well. So please don't get disturbed. अरे मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं नहीं. This is for one particular combination. There can be several other combinations which can ride over this, but ये थोड़ा बहुत उसमें देगा impact. And most important thing is we can always try and overcome these problems. So this session is all about that. Okay, so let's start. So this is what he has said already, that the chart has to be analyzed as a whole, and don't judge a person by moon placement only. There's more to a person than that, sir. So first thing, moon is the most important planet. Okay, and there is a reason why Ram and Krishna both chose one planet in the first house, and that was moon. Of course, it was in a combination. Krishna had a moon Ketu, Ram some say had a moon Jupiter. So why is this the most important planet? Okay. So if एक बार किसी ने मेरे से पूछा, if you could take a rebirth, which planet would you like to choose the placement in your chart? And I said, boss, exalted moon, preferably in the 10th house. They were like, Shani Rahu Ketu, मैंने कहा नहीं. If moon is okay, I can be poor and still happy. Yeah. So what I have learned is, sun is how you deal with the world, moon is how you deal with your own self and your inner circle. For example, a person with a very a strong moon will have very motherly feeling towards his inner circle and towards his children. And how he or she feels, that's very important. So वो जो feeling nature है, that's your moon. So आप दुनिया में क्या करते हो? That's your sun. You can be a badass boss, going to the office and doing everything. और रात को हो सकता है आप किसी पुरानी याद पे दारू पी कर रो. That could be your moon. Okay. So moon is your inner life and how you deal with yourself and the inner world. Sun is your external world, बाहर की दुनिया, office वाला. Moon is your house का and your inner circle. Okay. Next slide. Anything, Vishal, Tushar, you guys want to add to this? Yeah, sir. I wanted to say something. Moon, जब मैं moon की तरफ देखता हूँ ना, I feel moon is like the patra. It takes. So every planet gives. Shani gives pain. Jupiter gives happiness. Venus gives pleasures, comforts. Moon takes. And when moon takes, it processes and it gives it back to us. और वो जो processing है moon का, that actually decides how we are going to react to something in life. So if we take pain from Shani, or if we take pain from Rahu or confusion from Rahu, but how will I react to it? The whole, remember that kahavat thi 90% attitude, 10% problem, right? 90% is your attitude. That's a very moon kind of statement. And I'll
give you an example. थोड़े दिन पहले I was reading about Mahesh Manjrekar, the director. So he just had cancer and he went through his treatment. Now he's fine. But nobody, while he was doing movies and stuff, directing and all, nobody knew that he had cancer. And he was very okay about it. He just went through the routine treatments and then Exalted came Moon? out fine. What is that? Taurus moon है उसका? No, man, I didn't check that. But I'm saying the attitude he carried towards life is what a strong moon can give you. And on the other side, remember Kangana Ranaut in the movie Queen sitting on the car bonnet and crying, wailing. Absolutely, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया. So that is typical moon कर्क राशि वाला ध्यान. Correct. So, Yeah. so moon is how you actually. So some days you wake up and you go outside and everything seems bad. आपका वही घर है, वही बालकनी है, आप बालकनी के बाहर देख रहे हो, but everything seems bad. लगता है यार ये क्या लाइफ है, ये क्या दुनिया है सामने. But on the next day you go and stand in your balcony, you feel absolutely wonderful. That is all your moon, because moon is your emotional body. We have 7 bodies, right? So physical body, etheric body. उसमें जो emotional body part है, that is our moon. Sometimes the moon actually helps like a placebo effect also. People with strong moon, and I am one of them, people with strong moon have a tendency to tell themselves everything is fine, it'll be okay. And that kind of has that placebo effect in you, and then you start thinking things are okay. It's not that secret wala funda ke acha bolo to acha hoga, but they are self-healing. A strong moon is very self-healing. So I believe that is the reason this planet becomes very, very important. And folks, we have an entire slide on how to learn from a good moon. So courtesy Vishal. So we'll come to that in detail. Yeah. So Tushar, your views. Vishal, sorry, you had anything else to add? नहीं, बस एक चीज था कि transits usually we don't talk about, but this is one planet which changes house every matters. day. Yes, absolutely. Yeah, this changes house every 2.5 days, a different mood. So when at home I see that my wife is very, very quiet, I just go and check the moon transit and I decide how many days I have to keep quiet. So you hear a lot of halla gulla about Saturn transit, Rahu Ketu, even Jupiter transit. It's the moon transit that matters, guys. Correct. बाकी सब हवा में है. This is very, very close. Correct. So that's all from my side. तुषार भाई, with sun transit बाहर का तापमान कम ज्यादा होता है. With moon transit अंदर का तापमान कम ज्यादा होता है. Remember this. Yeah. Correct. So Tushar, over to you. Well, आज तक ब्रेन तो लोकेट कर लिया गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बट माइंड की लोकेशन किसी ने आज तक नहीं पाई कि वेयर इज द माइंड एग्जैक्टली लोकेटेड. सम वुड से इट इज इन द सेरेबेलम, सम वुड से इट इज पीछे की तरफ, इस लोब में, उस लोब में, बट नोबडी हैज एक्चुअली बीन एबल टू से दैट दिस इज द माइंड. And this is what the rishis have always been teaching us, that the mind itself has no fundamental basis of its own. As Vishalji said, it's a processing unit. What is it processing? It is processing the sensorial inputs that your body is receiving. So the sense of sight, smell, all of these indriyas taken, ये सब कुछ अंदर inputs भेज रहे हैं, and you are processing it. How are you processing it? As you said, शनि भी act कर रहा है, राहु भी act कर रहा है, but it is getting processed somewhere. That is the mind. Originally associated with lunacy. The reason was that many people thought, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब full moon होता था तो murders would and crime rates would shoot up. Asylum में entries would भर्ती ज्यादा होने लग जाती थी. तो इसलिए the word, it comes from the word lunar, which is also coming from the word lunatic. दूसरी चीज ये आती है कि it closely correlates with the menstrual cycle of a woman, which is why moon is generally taken to be a female deity. But only in Hindu mythology it is usually a Chandra, matlab male hai, but it's a female deity क्योंकि कहते हैं कि it changes every 28 days. जैसे 27 नक्षत्र है वैसे 28 days की cycle होती है. So this is what I have on the moon. The moon itself is Maya. It's क्योंकि उसका कोई space locate नहीं किया जा सकता. It's your inner feeling, but where is it feeling? You don't know where it is. That's where the catch is. Please,
आगे सर you know, बताइए। yeah. So नहीं अभी रुको स्लाइड हम्म, पीछे पीछे. You know why the title is Dare to Stare? Because if you stare at the sun, you can go blind. हम्म, If you stare at the moon, you can actually go mad. हम्म, Like Vishal said, yeah, Tushar said, no, and he's worked with people with mental complications. So if you stare at the moon for very long, you can go mad. And if you go mad, the mad people would often keep looking at moon. Right, Tushar? उनको चांद बहुत पसंद होता. They simply hate sun. So moon brings out your demons, you know, all those negative or witches or werewolf, वो कभी भी sun की light में नहीं आएंगे. Vampires कभी sun की light में नहीं आएंगे, right? वो सारे आएंगे moon की light में. So the external demons as well as your inner demons will come out when moon is in the right position. So ये madness और mayhem और you know Bollywood हमको सिखाता साहब अमावस की रात बहुत परेशान वाली होती है. It's actually the full moon night which is very damaging. That is when maximum people get into crimes of passion, depression, crying bouts. If somebody drinks alcohol, हिसाब रखना कि कौन कौन से दिन आपको हिट करती है. And I can bet $10,000 कि ये full moon पे ज्यादा हिट करती है. Yeah? So it is the full moon that you need to care about. So let's go to the myths of the moon. Tushar, next. Please. So, you know, in India, for some reason, we have done a very halka haath on the moon. I don't know. That's the only planet where Western astrology has done a better job. I'll have to admit that. But हाँ, moon वाले में hints बहुत सारे हैं. So he was born out of tears of Rishi Atri. So no wonder moon वालों का नलका चालू रहता. Okay. Then he was very handsome, good looking. He got married to 27 Nakshatra, but Rohini was his favorite and he would ignore 26 other wives, spend all the time with Rohini. So moon people are very partial. I have always seen this. शनि इन द नाइन्थ कभी नाइंसाफी नहीं करेगा. मून इन द नाइन्थ इंसाफ करके नहीं देगा. कभी देख लेना. They would always play favorites. चंद्रमा just cannot you know discriminate on dharma. उसका एक ही discrimination है, मेरा कौन है पराया कौन. Then just to add to all the khurafat, he eloped with his guru's wife, Jupiter की wife तारा देवी. उनको लेकर के वो भाग गए. So this shows कि मून को ऑर्डर और डिसिप्लिन और ये होना चाहिए. मनमौजी शब्द है ना, that has come from moon. मन की मौज जो आ गया कर दिया. गुरु की बीवी देखी जाएगा, मैं तो ले जा रहा हूं. And of course when Shukracharya came and gave him his blessings, we'll talk about it, how these two planets together brought the universe to the brink of destruction. And of course it is associated with Shiva. Shiva when in his Bholenath mode, he is Chandrama. When he is in a Dandanayak mode, he becomes Shani. And of course it is related to Ma as well. Okay, so when Ma is in Lalita mode or Gauri mode, she is Chandrarup. When she goes on a rampage, she is in a Kali mode, she becomes Shanira. Now coming to the Western myth. Westerners somehow, maybe because of the witches ka case or whatever, they always had a healthy skepticism about, you know, moon ki. It's not all about baking breads and, you know, giggling with babies. ये मून गॉडेस इनके कई हैं, हेडस से लेकर के और लेडी ऑफ द बीस्ट तक. सो दे वुड टिपिकली you know portray her as a very mixed kind of deity. आपका चंद्रमा at maximum is शरारती. Okay, moon goddess can be maid killers and child followers, because that is like nature. Nature में you know there are some animal species जो अपने बच्चे खा जाते हैं, because they know कि हमको अभी जिंदा रहना. And there are too many species where the female would kill the male after the procreation. कि भाई इसका रोल खत्म, अब इसको खा करके मैं अपने बच्चों के लिए न्यूट्रिशन इकट्ठा करूंगी. That is how dangerous moon and a mother's will to live can be. So nature is kind and cruel both. You know, we all love and respect nature and we should, but nature can wield incredible violence with no remorse. एक जगह भूकंप आएगा, हजारों लाखों आदमी गायब, बच्चे बूढ़े जवान सब.
So moon can be very kind and moon can be very cruel, and we'll see this in further slides. But damaged moon is more likely to hurt his own people than other people. ये इसकी बड़ी अजीब सी बात है. ओके, सो इसके साथ में कुछ एनिमल्स जोड़े जाते हैं. मून के लिए चंद्रमा को अक्सर हिरन पे सवार दिखाया जाता है. And Western mythology, of course, it associates with the doe, but they also associate it with the wolf and the pig. If somebody may ask why the pig, see a Kark moon eat when they are in a very bad mood. So people would typically hog. Okay, Kark Rashi or Chandrama in the seventh, they would typically hog when they are in a bad mood. They would drink and ball. वो human pigs बन जाते हैं. So moon when beyond his boundaries can be a pig, and moon when in a bad mood and wants his revenge, he can be a wolf. So डो के साथ में ये 2-3 एनिमल हमको याद रखना चाहिए, right? So let's go to the next slide. So moon के साथ में it has two sides. तुषार पीछे गया वो, पीछे वाला inner child वाला. So moon is the child in you and moon is the devil in you. Okay. अगर आप लोग हम सब स्कूल से निकले हैं, adults cannot be as cruel as children can be. वो कमजोर बच्चे को पकड़ के पीट देंगे, कोई लड़की बेचारी अगर वीक है तो उसकी चोटी खींचेंगे. Children can be very cruel at times because they don't have the sense of right or wrong. Okay. So moon is the hidden you, जैसे मन कहा तुषार ने. मतलब कई फिलोसोफर्स ऐसे थे, स्पेशली गुजरीजेफ. कोई भी पास में आता था पहले उसको दारू पिला के 3 दिन तक तल ही रखता था, सुबह शाम दिन रात, ताकि मैं जानूं कि इसके अंदर कौन छुपा हुआ. वो अंदर छुपा हुआ योर मून. व्हेन यू गेट ड्रंक योर मून कम्स आउट. सन वो है जो आप दुनिया को दिखाते हो, मून वो है जो दारू पीने के बाद आता. पंजाबियों में इंग्लिश, हाँ इंग्लिश शुरू हो जाती है. हम रॉयल बंदे था ना कि सुबह से शाम तक पंजाबी डाइट पे होता है ना, 2 खीरे और आइस टी और ये और वो, और शाम को 2 पैग, उसके बाद बटर चिकन और मखनी की दाल और साथ में 3 किलो आइसक्रीम. So that is when the moon comes out. So ये सारे ज्यादातर क्राइम्स ऑफ पैशन, वायलेंस, राइट्स, ये सब ड्रंक होने पर. So moon is how you respond to feelings. Okay, one can actually behave in a very childish way when it comes to house of the moon. You have moon in the 4th house. You are mummy ka bachcha. Mummy loves you. You love the mummy. And that is where you go when you need some retreat. That is where you go when you need some sanctuary. That is where you go when you need somebody to hold you. 2nd house moon परेशान होते हैं, पारिवारिक बैठक लगा लेते हैं. 7th house moon स्पाउस को जाके चिपक जाएंगे. 5th house moon बच्चे खिलाने लगेंगे. Okay. So moon is both. He is the inner child and the inner beast, and he is just the same. So I like this picture very much. Okay, next one. So like I said, I would rather have a good moon than have anything other. Okay. सब अच्छा मिले बहुत बढ़िया, but एक ही चूज करना. I would rather have a good moon. Because we must have seen somebody who is not great shakes at career, जिसने कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं, पढ़ाई में भी ठीक ठीक रहा, बट वो अपनी जिंदगी में मस्त है, उसको मतलब ही नहीं कुछ. किसी का प्रमोशन हो गया, उसकी सेहत पर असर नहीं. दूसरे लोग बिल्कुल सड़बल के कोले हो गए. दूसरे ने कार खरीद ली मर्सिडीज, उसको टेंशन नहीं, वो अपनी मारुति में राजी है. दूसरे पंजाबी में वो बोलते हैं ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में. हाँ. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. वो अपने में संतुष्ट है. वो उसको जितना ऊपर वाले ने दिया, he will enjoy it and he'll be at peace. And even if he is not very brilliant, I've seen people with a very bad Mercury but a strong moon. उनको मतलब ही नहीं, बॉस अपने बाल नोच ले, कोवर्कर ताने मारते रहे, उनको टेंशन नहीं, वो सांड जैसे अपनी मस्ती में चलते रहते. और मैंने ये देखा है, they are able to focus more on the positive side of things. And we'll come to that. अभी डिफिकल्ट मून कौन कौन से मैं मानता हूं, इट्स पर माई बुक्स कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आर द वर्स्ट टू हैव, एंड विल डिस्कस इन डिटेल. यू नो, लिंडा गुडमैन गिव देयर गुड साइड, विल गिव देयर बैड साइड. 6, 8, 12 as usual bad placement. 7th is a terrible placement. We'll come to that. और इनके हम उस पर बात करेंगे कि how their
association with other planet works. That is very important. Now, as you guys can guess, this is Cancer Moon. So ये वाला जो जोकर था, पिछला वाला जो जोकर था बैटमैन मूवीज, that was a Scorpio. Destructive, bindas. He was more of a Rahu character with a moon in Scorpio. ये बेचारा गरीब, ये कैंसर मून था, इसको कुछ नहीं चाहिए था जीवन में, थोड़ा प्यार चाहिए था और इसको प्यार नहीं मिला. Then he had complicated relationship with his mother, who he ended up killing. So this is a Cancer Moon gone bad. उसने पूरा एनार्की फैला दिया when he flipped. तो ये लोग वो हैं जो चैरिटीज चलाएंगे, ऑर्फनेजेस चलाएंगे और स्यापा भी डालेंगे. भीख मांगते बच्चों को देख के दुखी होंगे, वहां पे अपनी जेब से पैसे निकाल के खाना बांट देंगे, पैसा नहीं देंगे. वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस. दे आर बेबीज एट हार्ट. कर्क राशि मैन इमोशनली दे स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ 8. वहां पे ये स्टंटेड हो जाते. इफ यू हैव मैरिड अ कर्क राशि मैन, यू हैव, ये सारे बाबू सोना प्रोफाइल होते हैं. सो इफ यू आर डेटिंग अ कर्क राशि मैन, बिकम हिज मदर, विल बी राइट इन योर पाथ. ये बच्चे होते हैं, इनको माँ का प्यार बहुत चाहिए होता है. And these guys can get drunk and can create mess. Kark Rashi, this is very fond of their alcohol and then they create a lot of mess. You know, जब ये hurt होता है, I've seen this in a lot of my Cancer Moon and Kark Lagna friends. ये जब hurt होते हैं, for some reason women rush to their rescue. आधी लव स्टोरीज तो ऐसे शुरू होती है भाई लोगों. ये दुखी बैठे होंगे, किसी महिला के मन में ममता उमड़ेगी and she will come to her and she'll get attached, they'll get attached to her and story starts. Women can play damsel in distress. वो हराई घबराई सी घूमेगी और उसको देख के इंसानों के अंदर का मर्द जाग जाएगा, लो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, and the story starts. So people with Kark Rashi and Kark Lagna, let me know if you can relate to it. You can, you know, comment on the WhatsApp. तो इनको प्यार बड़ा चाहिए. Almost always they bring trouble at the time of birth for their mother. और माँ के साथ हमेशा एक्सट्रीम रिलेशन होगा, या तो मम्मी के बच्चे होंगे या शक्ल नहीं देखेंगे माँ की, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई होता है. अगर माँ उसको मीट कर गई तो ये श्रवण कुमार है, और माँ वो नहीं मीट करी तो ये they can turn their face. They will never have an average relation with the mother, never. और इनकी क्या यादों की बारात चलती रहती है, इनकी सीडी हमेशा एक्टिवेटेड रहती है. पुरानी यादों को सोचना, फैलाना, उनसे खुश होना, उनसे दुखी होना, उनसे एक्साइट होना, उससे डाउन होना, वो सब इनका, दे वर्चुअली लिव इन द पास्ट. हम गुजरे कल में रहते हैं, वो इनका फंडा. और हमेशा इनसिक्योर, जरा सा प्रॉब्लम हुआ और इनका स्यापा बाहर हुआ. I have seen very mature people behave in a childish way when they are insecure, up to and including yours truly. So, एक चीज इनकी बहुत स्ट्रांग है, they are protectors of the tribe of the nation. Okay. So, कर्क राशि वालों, please stop watching the bloody news. You will feel कि साहब पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा या मुसलमान चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ये सिंपली जितना हेटरेड वो शो करते, कर्क राशि उसको फेस वैल्यू पे ले लेता है. So you need to put rationality. So I have told every कर्क राशि कि भैया न्यूज नहीं देखना, because news is all negativity cherry picked in the world. So news, bad politics, religious fanaticism और दारू और खाने की क्वांटिटी, इनसे थोड़ा दूरी बना के चलें. So you should have a fixed portion, possibly. If you want your liquor, have a fixed portion. You want your food, have a fixed portion. Now coming to the ladies, this is the most difficult sign to have if you are a woman. Kark Rashi, Kark Lagna woman. She is the most dumped girl in the universe. मैंने दिल इनका साबुत देखा ही नहीं. पहली चीज तो दे कैन बी वेरी पॉजेसिव एंड दैट स्केयर्स द गाय अवे. पहली डेट पे जो है शादी का लहंगा बनने दे आती, दूसरे बच्चों के नाम सोच लेते. So I have a tip, ladies, keep the men following you. You don't follow the men, they will run away. Right, boys? Okay. Men will be men. Okay. और उनको शादी का बड़ा शौक होता. इनके पीछे एक शहनाई वादक चलता ही रहता मेंटली कि बस अब शादी करनी है. तब they are very eager to get married. And often I have seen them get divorced in one marriage. तो वो और ज्यादा ईगर हो जाती है आगे शादी करने को. उसके बाद में प्रॉब्लम क्या है, दे कैन स्नूप अप ऑन देयर मैन, दे कैन गो एप शिट क्रेजी.
Okay. I know personally girls who have hacked their boyfriend's email ID और सालों से हैक कर रखी है उसने. और 2 ऐसी वीरांगनाओं को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने पति और बॉयफ्रेंड के फोन में स्पाईवेयर डाला हुआ. she is difficult to live with. Okay, she is very sweet but she can be difficult to live with. और उसके बाद में क्या आता है, once she gets married the mate becomes expendable. फिर उसको ये होता मेरे बच्चे, अब शी हैज टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मैन, रिसोर्सेज वगैरह लेने हैं, ये तो एक्सपेंडेबल है, ये ना भी रहे तो भी चल जाएगा, बच्चे इज इंपॉर्टेंट. द नेचर्स थॉट, राइट. तो बच्चे उसके लिए फुलफिलमेंट और जीने की वजह बन जाते हैं. आदमी जो है वो बेचारा डिमोट होकर के सर्वर लेवल पे आ जाता है. एंड अगेन you know, moon goddess can be child swallower. Now we need to understand क्यों और कैसे. Okay. I have seen cancer women with an incredible amount of clinging and dependence on their बच्चा. अरे मेरा तो एक ही बच्चा है, कहाँ जाएगा, मैं इसको जाने. लड़के का आईआईटी में सिलेक्शन हो, माता जाने नहीं देगी, वो वहीं किसी टूटे फूटे कॉलेज में पढ़े है. या लड़के की शादी भी होगी तो उसमें इतनी उंगली करेंगी कि डिवोर्स हो. So moon in a bad mood, not every mother, not every cancer mother, cancer women absolutely love their children, but जो अति में प्यार होता है वो हमेशा घातक होता है. कर्क राशि की माँ है, उसके बेटे की शादी खतरे में ही है बचपन से. बिकॉज पहली चीज, या तो वो इतना अटैच होगा या माता इतना अटैच होगी कि ये प्रॉब्लम हो जाए. फिर दे आर वेरी गुड एट गिल्ट ट्रिपिंग. ये खुद भी गिल्ट का थैला लेके चलते हैं, दूसरे को भी गिल्ट ट्रिप खूब कराते हैं. अच्छा आज ये हो गया, तुम मेरा इतना भी ख्याल नहीं रख सकते, या तुम शादी से पहले ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए, तुम्हें मुझ पर तरफ नहीं आता. फॉरन विक्टिम कार्ड इनका चालू रहता. और खुद भी ये गिल्ट में रहता, खाम खा इमेजिनरी गिल्ट में कि मैं कितना बुरा इंसान हूं. इनको ये बड़ा अच्छा लगता है लोग मुझे अच्छा कहें. यह मून की बड़ी गंदी आदत है. ही नीड टन्स ऑफ अप्रूवल. एक और चीज जो मैंने देखी है, दे कीप क्लिंगिंग टू अब्यूजिव रिलेशनशिप्स कि भैया नॉन डेविल तो है. इट कैन गेट इनटू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, especially if the man has a strong Rahu, because this woman would never let go of the relationship easily. So ये जो इनको अक्सर मैंने देखा कर्क राशि वालों को जो है ना, थोड़ा मिड एज में आते आते केतु की दशा मिलती है, and that is what gives them the rehab. फिर इनके पिटस्यापे भी कम होते हैं, टेंशन्स भी कम होते हैं, तो केतु sort of refines them. So they should actively let go on their drama and manipulation and guilt tripping, वरना इनके रिश्ते खराब हो. And most important for all the Karka Rashi, Karka Lagna people, I have devised a mantra. Okay, learn to mother yourself. Be your own mother. You need to care for yourself. You give the books you want, the food you want, the liquor you want, of course in limits. But you need to pamper yourself if there is no one else. If you become your own mother, 50% problem is sorted because you wouldn't need the other person. दूसरे पे dependence खत्म हो. सर मेरा एक छोटा सा मून कैंसर पे एक बहुत ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, कैन आई शेयर? हाँ. सर आई फाउंड पीपल विद कैंसर लग्न और मून इन कैंसर, उनकी लाइफ में ना थ्रोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मतलब इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड कि वो गद्दी पे है कि नहीं. मतलब domestically they want to be in charge. I've seen them. हाँ, domestically, office में it's more of a मकर लग्न thing. हाँ. मकर मून I've seen very conscious about office का गद्दी. हाँ. तो कर्क लग्न is the backroom operator. उसको remote control चाहिए. गद्दी is कर्क. Sorry, गद्दी is मकर. 10th house है ना? So this is still a struggle for power, but not in an overt way like a Capricorn. They wouldn't go for it straight. Cancer does nothing straight. हमेशा 2 स्टेप इधर 2 स्टेप उधर फिर वार. इसीलिए इनके रोमांटिक ड्रामे काफी लंबे चलते हैं. Okay, चलो we'll have questions in the end, otherwise अपना फ्लो छूट जाएगा. जी. Next, Scorpio. So a special shout out to Millie Sinha. She is a tarot reader. Her Instagram is MYLLISTIC. She did a very good research on Scorpio and shared with me. So big shout out to her. तो स्कॉर्पियो को बदनाम बहुत कर दिया गया है. मेरी राय में इट इज अ मच बेटर मून टू हैव एज vis-a-vis a कैंसर मून. स्कॉर्पियो मून इज अ कैंसर मून विद अ बैड एस एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड. Some of the most successful people in the world have a Scorpio moon.
अब इनका क्या है, इनके इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं। बीइंग अ कर्क राशि, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद अ स्कॉर्पियो मून, ओके। इनके इमोशंस बड़े इंटेंस होते हैं, ऊपर से नहीं दिखे तो ऊपर से दे आर वेरी काम एंड कलेक्टेड, लाइक दिस फेलो थॉमस शेल्बी, इज द टिपिकल स्कॉर्पियो कैरेक्टर। शांति से बैठा रहेगा चुपचाप, एकदम से उठा के सामने वाले की आंख फोड़ देगा, यू नो। तो जब इनका वो लंज आता, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्केयर्ड अवे। दूसरे कर्क राशि जो है वो स्यापा डालता है, दीज गाइस प्लॉट एंड प्लान। कर्क राशि रोता रहेगा, तुमने मुझे मारा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वृश्चिक राशि हिसाब लगाए, बेटा तेरे को इस तारीख पे देखूंगा मैं। आई नो पीपल विद रिवेंज डायरीज, स्कॉर्पियो मून स्कॉर्पियो लग्न, उन्हें लिस्ट बना रखी, हिट लिस्ट है उनकी कि इस आदमी को मैंने दुखी करना जग। तो वो कहते हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, योर एनिमीज क्लोजर, वो इनका हाल है। दूसरे, स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ मेडिसिन, ओके। आपको डेयरी में वृषभ, खाने के काम में कर्क राशि, अकाउंटिंग में कन्या वाले भर भर के, मेडिसिन में वृश्चिक वाले छाए मिलेंगे आपको, बिकॉज दिस इज वन place where he is able to transform wish and process it. तो जहर जहर को काटता है वृश्चिक राशि. Lot of doctors have this, you know, that is why they are so comfortable around you know, blood and gore and all that. हाँ, इनके साथ में क्या है, they can be a little self destructive. कई बार मैंने इनको देखा है कि डेविल में केयर एटीट्यूड में जाके और अपनी जिंदगी का ये नाश कर लेते हैं. इसीलिए सबसे राउडी क्राउड आपको कहां मिलता है, मेडिकल कॉलेज. इतना इमेजिन सो मेनी स्कॉर्पियोज इन अ बिल्डिंग, तो वहां पे गैंग वॉर भी बड़ी गंदी होती है. उसके बाद में फेवरेट टाइम पास, कर्क राशि लव्स हिज बॉटल, स्कॉर्पियो लव्स हिज ड्रग्स. वो तो हल्के नशे हैं, इसके लिए सस्ते नशे हैं, स्कॉच स्कॉच ये ना ना ना, गांजा वांजा तो ऐਵੇਂ ही है बस मुंह साफ करने के लिए. I have almost always seen heavy Scorpio people dabble in drugs at least once in their life. So if you have a Scorpio बच्चा in house, tell them कि भैया ये बड़ी खतरनाक चीज है. So you should mess with something which improves your consciousness instead of something which destroys your consciousness. So इनको थोड़ा सा वो हमको ध्यान रखना चाहिए. Then they can be manipulative and lie a lot without the cancer kind of guilt. झूठ बोल के खट से निकल जाते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे. You know, all said and done, it's a sign of Mars. तो थोड़ा ब्रेवरी होता है इन लोगों में. कर्क राशि हड़बड़ाएगा कुछ करने से पहले, वो सोचेगा बहुत, करेगा नहीं. ये सोचेंगे भी करेंगे भी और शांतिपूर्वक निकल जाएंगे वहां. तो इज अ कर्क राशि विद अ जैकेट एंड अ गन. एंड दिस गाइस कैन बी रियली ब्रेव बैड एसेस. सो इसको जितना कंडेम किया जाता उतना खराब है नहीं. दैट्स माय रिसर्च फॉर इयर्स एंड इयर्स. So I know Linda Goodman Sun Science is like the Bible of astrology, but I think she did not do justice to this sign. बाकी दो को उसने लड्डू बांट दिए, इस बेचारे की जेब काट ली. And we'll come to the Pisces as well. Okay. So Pisces, you know, I get a very goody this thing about it कि साहब बहुत अच्छे होते हैं, and they are very nice people, you know, typical मीना कुमारी type. अपना बलिदान देने वाले and you know helping people, feeding orphans. Although for some reason, until unless they have a heavy Capricorn, Taurus or Cancer, they can't run organization. तो ये अपनी तरफ से 4 बच्चों को खिला के खुश हो जाएंगे. People running the orphanages and langars would be typical your Taurus, Cancer, Capricorn people. So ये जो है खुद को बलिदान करने में इनका बड़ा सिर्फ द गोल्ड फिश साइड, यू नो, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ. द ड्रीमर्स एंड ड्रिफ्टर्स थोड़े विम्सिकल होते हैं. विमेन हैव इट गुड इन मीन लग्न. कर्क जैसे औरतों के लिए श्राप है. मीन लग्न विमेन, आई हैव सीन देम हैव इजी लाइफ. मीन लग्न मेन सफर अ लॉट एंड विल कम टू दैट. एक इनके क्या खास है, ये लोग बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और इंट्यूटिव होते हैं. सो दे पिक अप इमोशंस. सो विशाल इज अ मीन लग्न एंड आई विल लेट हिम टॉक अबाउट इट. सो विशाल, ओवर टू यू. हाँ सर, तो इमोशंस का ना, व्हाट आई कॉल मून इन पाइसेस इज एम्पैथी ऑन स्टेरॉइड्स.
Pisces लग्न is empathy, but moon वहां पे आने के बाद it is empathy on steroids. मतलब बस में किसी और के साथ बैठ के आएंगे, उसका दर्द अपने साथ ले आएंगे घर पे. थोड़ी बहुत उसकी स्टोरी सुन भी ली, उसने कुछ बताया भी नहीं, उसको देख के इमेजिन कर लिया कि कितना दुखी है, और घर आके खुद दुखी हो जाएंगे. वो फीलिंग स्टिक्स टू देम. And it sticks to them. Means I have a Pisces lagna, and empathy sometimes is a problem for me, but because of the stronger moon I am able to shrug it off. But people with a Pisces moon are not able to shrug it off, and that is the problem, because आप कितना ज्यादा दर्द सहन करोगे, right? So at some point of time these go into alcoholism, या something to actually drown their pain. So that is one thing which I have seen. Then one more thing, as you said, dreamers होते हैं, drifters होते हैं. Pisces लग्न is कालपुरुष कुंडली का 12th house. So it is the other world. So these guys are very connected to the other world. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एक आध अच्छा या बुरा, इन दिस केस राहु का इन्फ्लुएंस हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंपैक्ट हो गया, तो इन लोगों को अदर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन भी अच्छा बैठ जाता है. So they are able to see things. इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है. agree. Correct. They are able to see things. They are able to feel things. One thing I have realized is whenever let's say I have to buy a home, or I have to rent a place, or I move to some place, negativity in the room, nobody has to do anything, but negativity in the room, I can realize that no, this is not the right place for me to be. बहुत जल्दी हिट करती है. एंड अगर इनके ऊपर राहु का इंपैक्ट हो गया तो वो नेगेटिविटी जो है इनको खा जाती है पूरा. बट ऑन द अदर साइड this can do wonders at times. For example, मेरे पास दो अच्छे एग्जाम्पल मुझे लगते हैं. एक है दलाई लामा. दलाई लामा has a Pisces moon. On the other side, if you remember a singer, Whitney Houston, right? Whitney Houston, amazing singer, amazing lady, but completely drugs और उन चीजों में जाके eventually she died. So they could become self-destructive in a different way, not like Scorpio, but they could become self-destructive in a different way. They could drown themselves in pain. एक बार मैंने शायद ग्रुप पे भेजा था, आई थिंक तुषार से डिस्कस किया था, if I'm not wrong, कि ये if you go in a bar, when you go in a bar वाले जोक्स होते हैं. तो पाइसेस जो है कोने में आंसू टपका रहा होगा, हाथ में एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा ड्रिंक लिए. कैंसर जो है मुंह से बोतल लगा के दारू पिएगा, फिर ढेर सारा खाना खाएगा, फिर उल्टियां करता मिलेगा. स्कॉर्पियो किसी कोने में जो है इंजेक्शन लगा रहा. So this is how these guys sort of self-destruct. But Pisces has an elegance which no other sign has. Leo में एक भड़कीलापन है. Capricorn has a sternness to them. Pisces has beauty and elegance. So women with a Pisces lagna or a Pisces moon, they do well. Men, it's a different story. So तुषार एक और सैंपल दिखाते हैं आपको Pisces का. ये भाई साहब, he has a heavy Pisces. Okay. So Pisces is fish. Fish is not only goldfish. Fish can be a freaking shark. दुनिया में सबसे ज्यादा स्कैम आर्टिस्ट, स्मूथ क्रिमिनल्स, बॉय टॉयज, सबको आपको हैवी Pisces मिलेगा. ये नंबर ही झूठे होते हैं जेमिनाई के बाद. जेमिनाई मून नंबर 1 झूठा, रिकॉर्ड तोड़. वो प्रैक्टिस के लिए झूठ बोल लेगा. Pisces जरूरत पड़ने पे बोलेगा. Okay. दूसरा, दीज पीपल एज मेन दे हैव इट टफ. या तो वो दाऊद भाई हो जाए, या फिर वो दलाई लामा हो जाए. बीच में वो रहते हैं तो वो बेचारे थोड़ा ड्रिफ्टिंग उसमें रहते हैं. ये लोग क्या है, दे कांट टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बार बार खाना, इनको चेल मारना, इनसे ज्यादा काम नहीं होना. मतलब वो मकर लग्न वाला 18 घंटे का शिफ्ट नहीं कर पाएगा. और खूब छुट्टी मारते हैं ये लोग, रैंडम छुट्टियां लेते हैं, मर्जी होनी चाहिए. और कभी कोई एम्प्लॉय साथ में आ गया, थोड़ा दुखी है, तो ये सारा उसके ऊपर लाट उड़ेल दे के काम छोड़ देंगे. उसके बाद में विशाल ने इनपुट दिया था, दे आर वेरी स्ट्रांग प्रोक्रेस्टिनेटर्स. काम नहीं होता इनसे. Yes. So Vishal, would you like to elaborate on that? Pisces lagna, daydreamers, right? Always कुछ एक अलग चीज से कनेक्टेड रहेंगे.
तो अगर कोई काम अभी जरूरी है तो उनका हमेशा दिमाग में यही रहेगा कि बाद में कर लेंगे. मून एज इट इज अ प्लैनेट विच इज नॉट, इट इज फिकल, and moon does not want to be in any kind of boundaries or it does not want to follow any rules. उसको अपनी लग्जरी, अपने टाइम से सब कुछ करना है. Pisces on the other side आपको कनेक्ट करता है एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड से. लिटरली ये लोग हैरी पॉटर वर्ल्ड में रह सकते हैं. मतलब आई सी माई डॉटर इज ऑल्सो पाइसेस लग्न. पाइसेस लग्न मतलब वो कभी कभी जिस तरह से हैरी पॉटर वर्ल्ड के बारे में बात करती है, मुझे लगता है इस दुनिया में है भी कि नहीं है. तो सो दे कैन प्रोक्रेस्टिनेट टू द nth लेवल. आलसी नहीं है, आलसी नहीं है, लेकिन मून की वजह से थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट डोंट सीम टू बी द प्रायोरिटी फॉर देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी उस समय कुछ और होती है. और दूसरे ये दे आर गुड एट आर्टिस्टिक स्टफ. दे डोंट लाइक, मतलब इफ यू वांट अ प्रेजेंटेशन टू बी डन, दे विल बी हैप्पी. एक्सेल शीट रखोगे, दे कांट हैंडल इट. दूसरा, दे आर एस्केपिस्ट. दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कमिट. मतलब सबसे टिपिकल जोड़ी होती है अ कर्क राशि वुमन चेतन का पाइसेस राशि मैन. दे लव ईच अदर बट शी इज हेलबेंट ऑन गेटिंग मैरिड और उसको करना नहीं. तो ये लोग क्या गोली देने मास्टर गोलीबाज होते हैं, और इतने प्यार से देंगे कि लोग गोली इनकी ले भी लेते, घर चले जाते, थैंक यू बोल. यू नो, लाइक अ फिश दे स्लिप. सर एक और बताऊं, एक बहुत मजेदार बात. या इनकी एक बहुत ब्यूटीफुल बात होती है, ये अपनी प्रॉब्लम को सबकी प्रॉब्लम बनाना जानते हैं. ओके, गुड वन. तो मतलब इट्स नॉट दैट दे विल स्प्रेड पेन, इट इज बेसिकली दे विल मेक इट एवरीबॉडीज प्रॉब्लम. नाउ एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इनका हाउ डू दे डू इट? एंड एज यू सेड राइट, वेरी स्वीटली, वेरी एलिगेंटली. सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो आपकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो चुका है. इसके बाद में दे आर एस्केपिस्ट. जैसे मछली हाथों से स्लिप हो जाती है ना, ये भाई साहब सारे हिंदुस्तान की एजेंसियों को स्लिप कर चुके कितनी बार, द मैन ऑन द स्क्रीन. सो ये एस्केपिस्ट होते, भागते बड़ी जल्दी हैं ये. और उसके बाद में आपसे मिलेंगे, मतलब आई हैव अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड. 2 महीना वो कॉल नहीं करता, जब कॉल करूंगा मैं करूंगा उसको, और वो बात इतने प्यार से करेगा जैसे कल ही गया मेरे पास. और मिलता है, हाँ यार मिलते हो, फिर वो गायब. On top of it, his wife is a Kark Rashi, so I know the chemistry. She will keep calling me, यार ये तो सुनते नहीं है, आप लोग इकट्ठे हो, I'll plan this, that, blah blah blah. So as men, they have it tough because they are not, ready for all the responsibility. इनको बैठ करके क्रिएटिव काम कुछ करना, पेंटिंग करनी है, बॉलीवुड में जाना and all that. वो टिपिकल ऑफिस जॉब्स के लिए they are not cut out. और इनके क्या है, लाइक विशाल सेठ, ये मेंटल दुनिया में रहते हैं. तो अगर शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ है, दीज आर द मेन विद मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. मीन राशि, मीन लग्न के आदमी की पहली शादी में मैंने हमेशा बवाल देखा. दे आर द नाइसेस्ट ऑफ द पीपल, बट इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज पहली शादी में तो डोमेस्टिक डिसहार्मनी मैंने देखा है. कर्क राशि इज कर्स्ड फॉर विमेन, पाइसेस इज कर्स्ड फॉर मेन. हाँ, रोमांस बहुत है. वो फूल ले आएंगे और फाइन वाइन, फाइन डाइनिंग, दे लाइक ऑल फाइन थिंग्स इन लाइफ. लेकिन वो मिलनी चाहिए, उसको करने का एफर्ट इट्स नॉट फॉर देम. सो माय हार्ट गोज आउट फॉर पाइसेस लग्न पीपल हु हैव टू स्ट्रगल फाइनेंशियली, because these are the guys want to chill out, take it easy, relax. तो मैंने देखा है, for some reason these people are often born to well-to-do family. गरीब आदमी मीन लगने वाला जल्दी मिलेगा नहीं आपको. God is kind. सर एक छोटा सा एंगल और है, एक छोटा सा एंगल जो आपने अभी बात बोली ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कालपुरुष में पाइसेस इज 12th हाउस, which is मोक्षा. हायर ऑर्डर पे वी आर टॉकिंग अबाउट मोक्षा. बट डे टू डे बिजनेस में अगर हम देखें तो इट इज नॉट, डे टू डे बिजनेस में आदमी मोक्ष की तरफ नहीं देखता है. तो फिर क्या देखता है? रिलैक्स, चिल आउट, आराम, कम काम, ज्यादा लग्जरी. सो ये इनका होता है. इस वजह से लॉट ऑफ देम कैन गेट इनटू स्कैम्स, स्पेशली इफ दे आर स्मार्ट. तो थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकलिटी देना चाहिए. सो विमेन हैव इट गुड इन पाइसेस, मेन हैव इट बैड. और ये एस्केपिंग वाला सिस्टम थोड़ा रोकना चाहिए. और एक मेरा एडवाइस है, दे हैव अ वेरी अनअर्थी नोशन ऑफ रोमांस.
तो वो देसी शादियों में होता नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन टूटती है, एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग आउट एंड दे ऑलमोस्ट समहाउ फाइंड सम वुमेन इंटरेस्टिंग इन देम. दे इनके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा इफ दे कीप देयर रियलिस्टिक expectations. Baki, they are some of the nicest people I've met. But there is a dark side, so I think we have discussed it. So now we'll talk about moons in different houses. So this thing we won't spend a lot of time on because ये काफी common knowledge में है. So we'll just quickly wrap it up. So moon, Vishal, you want to take this? Moon in sixth? हाँ, moon in sixth में so I'll tell about some of the problem areas इसमें जो देखिए सिक्स्थ हाउस इज रिपु भाव, रोग भाव, या सारे जितने रिपु है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और मून इज आवर माइंड. सो बेसिकली मून इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट. सो समटाइम्स इफ इट इज अ स्ट्रॉन्गर मून और अ बेटर मून, इट डज बेटर इन कॉन्फ्लिक्ट, इट डज बेटर इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट और सर्विंग अदर पीपल, विच इज सिक्स्थ हाउस. Right, legal profession, who are doctors, who serve people who serve. Yeah. But if it is not in a good shape, then they are always full of anger, full of resentment. थोड़े से हाइपोकॉन्ड्रियक्स होते हैं, थोड़ा हेल्थ फ्रीक्स होते हैं. जरा सा कुछ हो जाए, अरे इसमें मुझे कैंसर हो गया, they'll go and get it checked. तो और ये मैंने देखा इनको रूटीन बहुत चाहिए. विद इन अ रूटीन दे परफॉर्म वेरी वेल, यू नो, वो कन्या लग्न एनर्जी, राइट. तो उसके अलावा वन थिंग आई हैव सीन इज मम्मी इश्यूज विद मून इन द सिक्स्थ. So either the mother is source of the problem or mother is the problem. Correct. उसके बाद थोड़ा सा एंजाइटी मैंने इन लोगों में देखा है. दे कैन बी वेरी डेडिकेटेड वर्कर्स, वेरी सक्सेसफुल पीपल, बट थोड़ा एंजाइटी प्रोन ये रहते हैं, वो दैट कन्या नर्वस एनर्जी. तो इनके लिए बेहतर है टू हैव अ रूटीन एंड टू हैव रेगुलर हेल्थ चेकअप. And of course, if they donate to, orphanages, तो moon कहीं भी बैठा हो, it's good. इनके लिए कन्या विद्यालय donation is very good. 6,000 energy. So next, moon in seventh. Okay. So ये जो है, ये लोग बेचारे बिगड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं. First house moon is very kind. Seventh house moon is a spoiled brat. First house moon is Ram Krishna. Seventh house moon is like yours truly. Okay, so I have often seen troubled marriage, particularly for women. इनको ये होता है मुझे कोई बहुत लाड करता है, and like I said, for women, moon, a very strong moon can be dangerous. और ये क्या है, इनको दूसरों की बड़ी चिंता रहती है. ये सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है वाला पक्का प्लेसमेंट है. They are always worried about the दुनिया. सेवंथ हाउस मून, उसको पूछना अफगानिस्तान में तालिबान आए, ये सबसे ज्यादा चिंतित हुए थे. ये नहीं पता दुनिया के नक्शे पे है कहां पे, पर चिंता इनको पूरी थी. एंड दिस इज नंबर 1 प्लेसमेंट फॉर HR प्रोफेशनल्स, क्योंकि वो एक नेचुरल एम्पैथी आता है. कोई नया बंदा आया, अरे यार मैं तेरी हेल्प कर दूं, यू नो. एंड मैंने बहुत सारे अपने HR कोलिग्स के चार्ट में ये चीज देखा है, स्पेशली द गुड वंस, यू नो, नॉट द डेटा ड्रिवन वन, द पीपल ड्रिवन वन. But सबका इमोशनल लाइफ इज अ मेस until unless they have very good influences on the moon. और ये इनके मूड स्विंग्स बड़े गंदे हो, बड़े भयानक मूड स्विंग्स. मतलब आधे घंटे में इनके पूरे गियर बदल सकते हैं. दे कैन गो फ्रॉम एक्सट्रीमली फनी टू एक्सट्रीमली क्रैबी एंड क्रैंकी. सो इसमें ये जरूरी है दैट you keep your charity and heart अलग and you keep your business mind अलग. If you keep mixing everything, there would be a mess. Second thing, like I said, learn to mother yourself. Okay, next. सर एक छोटा सा मेरा पॉइंट, मेरी ऑब्जर्वेशन अपने उसमें काम में रही है. मून एंड सेवेंथ के साथ सर मैंने देखा है दैट जो दे रिलाई हेविली ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर इनर वर्ल्ड थ्रू द सेवेंथ हाउस, व्हिच मींस कि थ्रू द पार्टनर or through anybody in the seventh house, they would want to know how they are feeling. So a lot of times their inner world is projected onto the other individual, which would mean कि अगर आप तुम सबसे ये जानने की कोशिश करोगे कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तो this is bound to completely confuse you. Yeah, very good point. ये जन्म संग्रह कराने चल देते हैं. Yes,
आपको वो चीज, आपको वो मिलेगा ही नहीं, वो क्लैरिटी मिलेगी नहीं जब तक आप दूसरे से पूछते रहेंगे। अगर पूछें भी तो एक सेफ इनर सर्कल से पूछें, सबसे नहीं पूछें। इट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू अबाउट योर ओन सेल्फ, दैट्स ऑल। And they can be very trusting. They can be unreasonably trusting. Yes, I've yes, been हाँ, cheated so many times in my life. I've been stabbed in my back so many times. एब्सोल्युटली। कि अब जा करके वो केतु ने जब प्योरीफाई किया ना, मेरा चंद्रमा पकड़ के धोया अच्छे से, उसने पूरी स्क्रबिंग करी, तब जा करके ये बीमारियां मेरी थोड़ी कम हुई हैं। सो अपना तुषार भाई, व्हाट यू सेड ना, उसमें एक और पॉइंट आता है, जैसे आपने पूछा ना, हर एक से आप पूछेंगे, दे ऑल्सो आर वेरी वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स, ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर है 7th मून। आप दिन में कम से कम 50 बार बिना किसी कारण से मुझे पूछेगी, आप गुस्सा हो मेरे से? बिकॉज शी इज वरीड, ये गुस्सा तो नहीं है। I keep checking with my wife. यस यस यस। इसमें लेकिन कई बार सर I think मिसगाइड every man does, but मिसगाइड किए जा सकते हैं इसमें, जो 7th हाउस है वो मिसगाइड Yeah. हो सकता है। yeah, Correct. ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं एंड दे लर्न द हार्ड वे। सो इनके लिए 2-3 चीजें जो मैंने देखा है, रुद्राभिषेक डज वेरी वेल। अभिजीत विल टेक द क्वेश्चंस इन द एंड, है ना? So keep putting them in the chat so that we can accumulate them and answer them. एक तो शिव काली की पूजा इनको बड़ा सूट करते हैं। Absolutely. दूसरे, दे शुड रन और सपोर्ट सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी। तो वो जो इनके अंदर का मदर कॉम्प्लेक्स है ना, वो काफी हद तक सॉर्टेड हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द जेंटलमैन एंड द लेडीज विद मून इन द 7th, योर पार्टनर इज योर पार्टनर, ही इज नॉट योर मदर, शी इज नॉट योर मदर। यह स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। आपका मूड खराब है तो वो बेचारे गरीब ने ठेका नहीं ले रखा। तो यू शुड बी योर ओन मदर। गौतम बुद्ध कह गए, आप आत्म दीपक भव, अपने दीपक खुद बनो। मैं कह रहा हूं अपनी माता खुद बनो, 50% प्रॉब्लम सॉल्व। डिपेंडेबिलिटी। Yeah, so I have a, for example, when I felt like साहब दुनिया बहुत खराब है और मैं क्या कर सकता हूँ, I started a small little charity. या कभी मेरा मूड खराब होता, I would simply go have a cup of coffee, sit in my favorite cafe or something, और वहां पे आधा घंटा बैठ के मैं कुछ नहीं करूंगा, बस YouTube देखता रहूंगा, किताब पढ़ता रहूंगा। I know how to heal myself, and that is very very important for the moon to know to heal him. So next, Tushar, you specialize on this one. Go ahead. If moon in Taurus is stability, then moon in 8th is the opposite of that, which is chaos. If you have your moon in the 8th, it means that unlike the moon in the 7th, you want to get into the dirty bits of the relationships. 7th house is relationships, but 8th house is sex and taboo, which means कि आपको हर चीज की तह तक जाना है। You're not fine with ऊपर से हालचाल लीजिए। तो the moon in 8th is looking for intense intimacy. तो ये अक्सर कई बार अलग अलग, मतलब prone to affairs, prone to situations which can be blasphemous, which can create disorder. तो अच्छा खासा लाइफ चल रही है, suddenly you have something on the side. What is it going to do? It's going to create chaos in your own life. तो मून इन स्कॉर्पियो की तरह इनके ऑब्सेशंस, इनके अंदर भी वही रेज डेवलप होती है। मून इन 8th लर्न्स रेजिलियंस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन स्कॉर्पियो थीम्स इमर्ज। तो इन लोगों की लाइफ में इनर वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली टर्बुलेंस में रहता है। उसी टर्बुलेंस के थ्रू ही अपने अंदर कुछ रिलायबिलिटी देख पाते हैं। As he says, Dungeons and Dragons. So these people, I would say moon in 8th, very good for anything that is research oriented. किसी चीज की तह में जाना है, you want to be a detective, you want to be a psychologist, I think बहुत बढ़िया रहेगा। That way you psychologist बनने के लिए one of the best thing that you can have is a damaged moon. Yeah. अच्छे मून वाला साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेगा, and you will typically find a राहु मून guy in psychology, या ये 3 में से कर्क, वृश्चिक या इसमें से मीन में से साइकोलॉजिस्ट निकलते हैं। For some reason एक्वेरियस से निकलते हैं।
Aquarius. क्योंकि एक्वेरियस को भी अर्ध जलीय राशि बोलते हैं, क्या लॉजिक आई डोंट नो, बट वो वाटर बेयर है, साइन है उसका, तो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट है. तो पीपल विद हैवी एक्वेरियस मेक वेरी गुड So if psychiatrists. Cancer is clear water, then Earth is swampy water. This is not the clear water of Pisces, which is the sea. This is not the clear water of Cancer. This is the swampy water. यहाँ alligators हैं. So the moon in the Earth will pick on the most negative, the most dreadful, the most toxic aspects of any kind of relationship. So these guys will spend, इसलिए आप इनको देखेंगे कि delinquent हो जाते हैं, कभी कभी नशे इतने ज्यादा हो जाते हैं, because they are with the most toxic elements there. Although इसी वजह से इनको healing capacity भी होती है, क्योंकि इनको पता है नॉर्मली आप ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम नहीं कर पाएगा, नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर किसी की मून इन स्कॉर्पियो है, उसको पता है कि क्या होती है कोफ्त, उसको पर पीड़ा, उसको वो इंटेंसिटी पता है, एंड वो अपना हाथ डाल देगा उसके अंदर. कैंसर नहीं डालेगा. मून इन वो बच्चों को रोटी खिला के राजी है, बच्चों को रोटी खिला देगा, ये घुस जाएगा ट्रेंचेस में. तो इसीलिए वहां पे इनके अंदर एक एल्केमिकल प्रॉपर्टी होती है. मतलब ये जैसे आपने कहा ना कि पॉइजन को मेडिसिन बना सकते हैं, ये कॉपर को गोल्ड बना सकते हैं. तो ये इनके साथ पोटेंशियल है, लेकिन लाइफ में कॉन्स्टेंटली चेंजेस पे चेंजेस, विच इज वेयर इट हेल्प्स टू सेव अप. मून इन एट्थ को मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी राशि, थोड़ा सा हल्की सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको करें, क्योंकि आपका मून इवेंचुअली वो वल्नरेबिलिटी के लिए बना है. वो बार बार अपनी लाइफ में इतने डिस्टर्बेंसेस ले आओगे, तो आप किसी एस्पेक्ट को स्टेबल रखो. फाइनेंसेस विल हेल्प. दिस इज व्हाट आई नो अबाउट इट. एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज कि ये लोग थोड़ा सा ऑकल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, पुठे पंगे बहुत लेते हैं. कोई तंत्र विद्या कर लेंगे, कोई और उसमें इफ दे आर अनगाइडेड, यू नो, आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट, if you don't know or you don't have a good guide to protect you, do not mess with occult. Do not mess with it. और इनमें they have a strong sense of paranoia. मैंने देखा. Yes. वो फलाना क्या कर रहा है, threat, constantly threat. Paranoid रहते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत है. सर एक चीज इनके लिए मैंने, प्लीज आप बोलिए. इनके लिए मैंने देखा है कि इनको यू नो वो इंटेंसिटी को थोड़ा सा इनको सही जगह पर गाइड करना चाहिए. इसलिए रिसर्च यूजुअली हेल्प करता है, क्योंकि उस रिसर्च से आप वो तह पहुंच सकते हो. लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे होगे तो आप बिना बात का तूफान क्रिएट करोगे. दूसरी चीज सर, क्योंकि 8th हाउस यूजुअली इंटरजनरेशनल एस्पेक्ट्स के सबसे अगली एस्पेक्ट्स को लेके आता है, तो अगर मून 8th में है तो कहीं ना कहीं जो मटर्नल लाइन में कुछ ना कुछ ग्लिच बैठा हुआ है, और माता जी कुछ ना कुछ कलेश करेंगी या कलेश की वजह बनेगी. कलेश की वजह बनेगी, which is where the child knows this by instinct and keeps craving for it. Yeah. So I have often seen that happen. Yeah. So healing कैसे करना है वो हम आखिरी में बात करेंगे. Next slide. So moon in 12th. Okay. सबसे पहले तो इनको नींद नहीं आती. Okay. Moon in 12th, I have often seen people जिनको नींद नहीं आती, वो कभी दूध पी रहे हैं, कभी गोली खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. They have a taste for liquor. Moon in 12th. उसको जो है वो एक escape चाहिए उसमें. दूसरा, they feel very detached with the world. उनकी समझ में नहीं आता, they are not able to relate. वो थोड़ा disconnected feel करते कि यार क्या पागलपन है. तो Moon in 8th अगर डिप्रेशन देता है, मून इन 12th एपैथी देता है, माइल्ड एंजाइटी और एपैथी. एंड दे कैन लूज टच विद देयर मदर. माता जाके 12वें खाने बैठ के खर्चा हो गया, कई बार मर भी जाती है. और ये लोग भी वो हैं जिन पे कि 12 खाने का इमोशन आके गिरता. पाइसेस जैसे दे आर वेरी ओपन टू अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस. इनको सपने बड़े विविड आते हैं. और इसमें आई हैव रेड समवेयर कि ये सन्यासियों का बहुत होता है. टू बिकम अ सन्यासी यू हैव टू हैव अ हैमर्ड मून. इन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स यू हैव टू हैव अ बैड मून इन ऑर्डर टू बिकम अ सन्यासी. सन्यासी बनने के 2-3 सबसे ज्यादा सन्यासी आपको चंद्र शनि वाले लोग मिलेंगे सब. दे वांट टू यू नो एस्केप द वर्ल्ड. वो सॉलिट्यूड और सिक्लूजन चाहिए. और ये डिसिप्लिन तो इनका बिल्कुल ही खत्म होता है. नींद ही नहीं पूरी होती बेचारे, क्या डिसिप्लिन.
So they need a lot of sleep. And इन लोगों को फिश नहीं खाना चाहिए. और कर्क राशि वालों, मीन राशि वाले फिश नहीं खाएंगे, कर्क राशि वाले क्रैब नहीं खाएंगे. आई नो वी हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र. प्लीज अवॉइड क्रैब एट ऑल कॉस्ट. मैंने लाइफ में एक बार खाया था. दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स ऑफ माय लाइफ. और कहीं पे मैंने पढ़ा था रात को दूध नहीं पीना चाहिए इनको, मीन राशि वालों को. For some reason, I don't know, but I've heard that from a lot of friends who are astrologers. और इनके लिए it's very good to donate. और घर में एक्वेरियम रख के फिश पालो, अच्छे से उसको खाना वाना खिलाओ. That should help for especially for Pisces राशि, Pisces लग्न and people with moon in the 12th. It's like feeding your moon. So इसके बाद now we are going towards the most important part of